Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. Now, in earlier session, we discussed about what do you mean by cost of capital and the definition of cost of capital and the components of various types of cost of capital. So, first of all, what is cost of capital? The cost of capital is what? It is a cost which is incurred in order to obtain the fund from the market through the various sources. Okay, so market से जो money raise करते हैं, that is through issue of debenture, issue of equity share, issue of preference shares, उसके ऊपर जो भी cost incurred होगा, that is called as what? Cost of capital. Clear? Now, today in this session, we will discuss about the first component, that is calculation part of the cost of debt or cost of debenture. But before starting this calculation part of the cost of debenture, you should know about what do you mean by debenture, or what do you mean by debt, or what do you mean by bond. Actually, you already learned in SY, I supposed. In financial management, वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस करके एक टॉपिक था, दैट इज डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स. उसमें आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर. सो टुडे इन दिस सेशन आई विल गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द डिबेंचर, what do you mean by debenture and the features of the debenture, and then after formula of calculation of the cost of debt or the cost of debenture. Okay, so I'm just revising, okay, what do you mean by debenture and the features of the debenture. Clear? Now, first of all, debenture, it is also called as what? Bond. Okay, it is also called as what? Debt. So generally, what is bond? Bond are long-term security, and it is generally issued by the government. Okay, and the bond which is issued by the private company, it is known as what? Debenture in India. Okay, so bond is what? It is a long-term security, and it is generally issued by the government. And those bond which is issued by the private company, it is known as what? Debenture in India. And we all know that the rate of interest on bond, on debenture are generally fixed, and it is known to the investors. Okay, यानी I as a investors of bond, और मैंने कोई कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, सो आई एज ए इन्वेस्टर्स आई नो दैट कि व्हाट इज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड, and this rate is known by the investors. Okay, so generally what is bond? It is a long term security. Okay, it is issued by generally government, and those bond which is issued by the private party, it is called as what? Debenture. Okay, and the rate of interest are generally fixed, and it is known to the investors. Now features of bond. So first is what? Face value. Okay, ये सब टर्म आपको याद रखना है, बिकॉज सम्स में कंटिन्यूसली आएगा. फेस वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, मेच्योरिटी पीरियड, ये सब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फेस वैल्यू? कि फेस वैल्यू इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पार वैल्यू. ओके, एंड द बॉन्ड इट इज जनरली इश्यूड एट पार, यानी बॉन्ड ऑलवेज फेस वैल्यू से इश्यू होगा, जनरली एट पार वैल्यू ऑफ ₹100 और ₹1000 जनरली. ओके, एंड द इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू. ओके, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है ना बॉन्ड के ऊपर, वो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू से. एग्जांपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. ओके, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 100. सो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? ₹8. क्लियर? Okay, so interest is always calculated on the face value. So first feature is what? Face value. Face value यानी it is also called as what? Par value. And bond is generally issued at par of ₹100 and the 1000, and the rate of interest is always calculated on the face value. Clear? Second feature is interest rate. Now the interest rate is always be fixed, and it is known to the bond holder. यानी the rate of interest is fixed on debenture or the bond, and this interest rate it is known by the bond holder. Bond holder is nothing but investors, and investors को पता है कि rate of interest कितना है. Okay, so rate of interest is what? Fixed. Now this interest rate it is also known as what? Coupon rate.
It is also known as what? Nominal rate. Now ये term भी याद रखना, because sums में sometime coupon rate देते हैं, nominal rate देते हैं. So coupon rate and nominal rate is nothing but what? Interest rate, which is calculated on debenture. Clear? Third feature is maturity. Now it is generally issued for a specific period of time. Okay, and generally bond, it is issued for a specific period of time, that is 8 years, 10 years, okay, 7 years, 5 years. So it is repaid at maturity. Okay, so maturity is nothing but time period. Then next, redemption value. ये अच्छे से पढ़ना, because ये continuously sums में आएगा कि bond is redeemed at par, bond is redeemed at premium, bond is redeemed at discount वगैरह. Okay, so first of all, what do you mean by redemption value? That is redeemable value or the redemption value. So what is redemption value? The value that bondholder will get on maturity is called as what? Redemption value. Okay, so what is redeemable value? Redeemable value means what? The value जो bond holder को मिलता है, जो investors को मिलता है at a time of maturity, it is called as what? Redemption value. Okay, and suppose I invest in a particular bond for 10 years. So after 10 years जो मुझे बॉन्ड के ऊपर वैल्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडेम्पशन वैल्यू. सो द वैल्यू दैट द बॉन्ड होल्डर गेट एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडेम्पशन वैल्यू. नाउ रिडेम्पशन वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मैच्योरिटी वैल्यू. ओके, नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट, द बॉन्ड मे बी रिडीम एट 3 वे. ओके, एंड a bond is redeemed either at par, either at premium, or either at discount. Okay, and a bond is redeemed either at par, either at premium, or either at discount. ना par यानी equal होगा. Okay, so generally क्या होता है कि when the required rate is equal to the coupon rate, when the required return is equal to the coupon rate. Okay, so example कि investors expect that कि मुझे as a investors of bond मुझे 8% मिलना चाहिए. So required rate of return is what? 8%. Okay, और कंपनी कूपन रेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इंटरेस्ट रेट. ओके, सो कंपनी भी 8% इंटरेस्ट रेट दे रही है, यानी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न एंड द कूपन रेट इज इक्वल होगा. सो बॉन्ड का रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा? एट पार से बॉन्ड होगा. सॉरी, बॉन्ड कैसे रिडीम होगा? एट पार से होगा. क्लियर? सेकंड इज व्हाट? एट प्रीमियम. ना प्रीमियम यानी कुछ ज्यादा मिलेगा, ऐसा सिंपल सा टर्म होता है प्रीमियम. ओके, सो प्रीमियम यानी व्हेन रिक्वायर्ड रिटर्न इज लेस देन कूपन रेट. नाउ सपोज आई एज ए इन्वेस्टर्स आई एक्सपेक्ट दैट कि मुझे 8% मिलेगा. सो रिक्वायर्ड रिटर्न इज व्हाट? 8%, बट कूपन रेट जो कंपनी आपको दे रही है वो 10% है, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेसर देन द कूपन रेट, यानी इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है. ओके, सो बॉन्ड इज रिडीम एट प्रीमियम से, यानी वी एज ए इन्वेस्टर्स आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ज्यादा वैल्यू मिलेगा. सो व्हेन द रिक्वायर्ड रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट. क्लियर? एंड थर्ड, बॉन्ड इज रिडीम एट डिस्काउंट ऑल्सो. ओके, सो डिस्काउंट कब होगा? व्हेन द रिक्वायर्ड रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट. आया समझ में? क्लियर? सो जब हम लोग सम्स कैलकुलेट करेंगे वहां पे आपको अगेन कुछ ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा. सो पार यानी जितना फेस वैल्यू उतना ही आपका रिडेम्पशन वैल्यू होता है, जितना फेस वैल्यू उतना आपका रिडेम्पशन. प्रीमियम मतलब जो आपका फेस वैल्यू है उससे भी आपको ज्यादा मिलेगा, यानी आपका रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा? हायर होगा. उसको क्या बोलते हैं हम? प्रीमियम से रिडीम हुआ. ओके, एंड रिडेम्पशन वैल्यू डिस्काउंट, रिडेम्पशन वैल्यू लो होगा, यानी आपका बॉन्ड कैसे होता है? डिस्काउंट से रिडीम होगा. ओके, सो ये टर्म याद रखना है. बॉन्ड इज रिडीम आइदर एट पार, आइदर एट प्रीमियम, एंड आइदर एट डिस्काउंट. देन फिफ्थ इज व्हाट? मार्केट वैल्यू. The price at which it is currently sold or bought is called as what? Market value. Okay, and whatever prevailing price where the bond it is sold and the bought is called as what? Market value. Clear? So these are the features of the bond. So main क्या याद रखना है? Face value term, then rate of interest is fixed always on bond, and this rate
it is known by the investors. And redemption value or redeemable value. So redemption value or redeemable value, it is also is what the value that the bondholder get at a time of maturity. Okay, and this redeemable value, either it is at par, either it is at a premium, and either it is at a discount. क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ, समझ में आएगा ना? ओके, नाउ certain terms again it is used in the calculation part, that is called as what? Flotation cost. Now what is flotation cost? Flotation cost means what? The expenses incurred at a time of issue of capital, such as underwriting commission, brokerage, etc. Okay, यानी जब भी आप बॉन्ड इश्यू करते हो, इक्विटी शेयर इश्यू करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हो, वॉट एवर कैपिटल इट इज इश्यूड इन द मार्केट. ओके, तो जो इश्यू कैपिटल है, सॉरी जो इश्यू एक्सपेंसिस है, इट इज जनरली टर्म एज व्हाट? फ्लोटेशन कॉस्ट. दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन. अंडरराइटर कौन है? आप अच्छे से पढ़ोगे स्टॉक एक्सचेंज में. समटाइम क्या होता है कि कंपनी सर्टन बॉन्ड इश्यू करती है. ओके, हर एक बॉन्ड इश्यू के टाइम हर एक बॉन्ड परचेज नहीं होता है. सो अंडरराइटर वो ले लेते हैं. सो अंडरराइटिंग को क्या कर देना है? कमीशन देना है. ओके, सो जो इश्यू एक्सपेंसेस आएगा, अंडरराइटर को कमीशन देना है. So underwriting commission, it is an example of flotation cost. Brokerage charges देना, again it is example of flotation cost. Okay, तो सम्स में आएगा कि बॉन्ड इश्यू हुआ था सो एंड सो, उसके ऊपर इतना फ्लोटेशन कॉस्ट लगा था, इसलिए आपको ये टर्म समझ में आना चाहिए, फ्लोटेशन कॉस्ट. सो फ्लोटेशन कॉस्ट इज नथिंग बट द एक्सपेंसेस इनकर्ड एट अ टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द कैपिटल. क्लियर? देन टैक्स रेट. Okay, so it is nothing but it is income tax rate, and the interest on debenture is always be tax free. आपको पता है कि लोन्स और डिबेंचर होता है ना, उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट मिलता है इट इज व्हाट? टैक्स फ्री रहता है. सो टैक्स रेट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन द एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन पार्ट. क्लियर? सो ये आपका बैकग्राउंड मतलब थियोरेटिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हुआ. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्मूला. ओके, सो हम लोग पढ़ते अभी फॉर्मूला. नाउ डिबेंचर मे बी ऑफ टू टाइप, दैट इज irredeemable डिबेंचर एंड द redeemable डिबेंचर. Okay, or we can say irredeemable debt or the irredeemable debt. So debt, it is categorized into two, irredeemable debenture and the redeemable debenture. Now what is irredeemable debenture? Okay, the debt which is not redeemable during the life of the company. That means what? मतलब सम्स में आपको देंगे तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये टाइप का बॉन्ड रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है. ओके, सो इरिडीमेबल मतलब द डेप्ट विच इज नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन. यानी जो सम्स में मैच्योरिटी पीरियड दैट इज नंबर ऑफ ईयर इज नॉट गिवन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? इरिडीमेबल बॉन्ड. Okay, it is also known as what? Perpetual bond. Clear? So जो डेप्ट, जो बॉन्ड, जो डिबेंचर में मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया होगा, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? इरिडीमेबल बॉन्ड और इरिडीमेबल डेप्ट. ओके, सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिडीमेबल डेप्ट. सो रिडीमेबल डेप्ट क्या होता है? द डेप्ट which is redeemable during the life of the company. Okay, after 5 years redeem होगा, 10 years redeem होगा, 15 years के बाद redeem होगा, 7 years के बाद redeem होगा. So okay, so the debt which is redeemable during the life of the company. That means what? Maturity period is given. Such type of bond is called as what? Redeemable bond. Clear? So simple सा आपको याद रखना है. Irredeemable मतलब maturity period is not given, and redeemable bond means what? Maturity period is given. Clear? Now calculation part. So हम लोग फर्स्ट समझ रहे हैं, that is cost of debt. Okay, और वो डिबेंचर कौन से टाइप का है? इरिडीमेबल डेप्ट है. और इरिडीमेबल डेप्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जहां पे मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन, यानी जो सम्स में मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया होगा, सच टाइप ऑफ बॉन्ड और सच टाइप ऑफ डेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इरिडीमेबल डेप्ट. सो व्हाट इज अ फॉर्मूला? सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज इक्वल टू व्हाट?
इंटरेस्ट रेट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट. ओके, सो इंटरेस्ट जो भी मिलता है बॉन्ड के ऊपर वो टैक्स फ्री रहता है. सो आपको ऑलवेज क्या करना है, 1 माइनस टैक्स रेट. ओके, सो 1 माइनस टैक्स रेट किसका, इंटरेस्ट के ऊपर. सो इंटरेस्ट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डेब्ट. ओके, यानी जो भी बॉन्ड सेल होगा वो टाइम पे जो भी एक्टिविटी होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ द डेब्ट. यानी व्हेनेवर द कंपनी इश्यू द डेब्ट, ओके, तो वो इश्यू कैसे होगा, वो अमाउंट आएगा यहाँ पे नेट सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ द डेब्ट. ओके, सो ये फॉर्मूला को इंडिकेट किया. सो कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट का आई इंडिकेट किया, 1 माइनस टैक्स रेट, सो 1 माइनस टी, एंड नेट सेल प्रोसीड इज कॉल्ड एज व्हाट, एसपी. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है कि इन केस ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज व्हाट, आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन एसपी. I is what, interest rate, 1 का 1 रहेगा, and T is what, tax rate divided by SP. Clear? Where जो I है interest, okay, so I is what, face value of the debenture into rate of interest divided by 100. okay, तो ये फॉर्मूला जैसे होगा, बट आपको सिंपल से याद रखना है कि I, that is interest, is calculated on face value of debenture. ओके, यानी इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ₹10. क्लियर? सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर. क्लियर? नाउ सेलिंग प्राइस, नेट सेल प्रोसीड, दैट इज एसपी, आपको कैसे मिलेगा, वॉट एवर फेस वैल्यू इज गिवन, फेस वैल्यू दिया होगा. नाउ अगर बॉन्ड इश्यू होगा प्रीमियम से होगा ना, सो प्रीमियम ऑलवेज फेस वैल्यू में ऐड करना है. सो यहां पे प्लस, दैट इज प्रीमियम ऑन इश्यू, और इंटू ब्रैकेट माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू. अब इसको कैसे समझना है कि आपको एसपी कैसे कैलकुलेट करना है. सो फेस वैल्यू रहेगा. नाउ अगर बॉन्ड प्रीमियम से इश्यू हुआ, प्रीमियम से, सो फेस वैल्यू में प्रीमियम वॉट एवर अमाउंट, प्रीमियम का वॉट एवर अमाउंट, इट इज एडेड टू द फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इश्यू. बट इफ द बॉन्ड इट इज इश्यूड एट डिस्काउंट, सो आपको क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू में से डिस्काउंट रेट माइनस करना पड़ेगा. क्लियर? सो एसपी क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट. क्लियर? जो भी अमाउंट आएगा अगेन उसमें से क्या माइनस करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट. एंड फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, just like flotation cost like underwriting commission or the brokerage charges. okay, अब ये flotation cost का जो परसेंटेज है, अमाउंट दे देंगे तो इजी है, डायरेक्टली माइनस कर देना है. बट परसेंटेज होगा ना, वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, फेस वैल्यू जो भी आएगा वो प्लस प्रीमियम होगा, जो भी अमाउंट दो मिला के आएगा उसका परसेंटेज निकालना है. लाइकवाइज फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जो भी अमाउंट आएगा उसका फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना है. ओके, परसेंटेज. ओके, सो एसपी इज व्हाट, नेट सेल प्रोसीड कैसे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इश्यू और माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू, एंड माइनस लास्टली flotation cost. And flotation cost is nothing but underwriting commission, brokerage charges, etc. And T is nothing but tax rate. Okay, so ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर देना कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन एसपी. विच टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज व्हाट, इरिडीमेबल. क्लियर? सो बी पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल डेब्ट. रिडीमेबल डेब्ट किसे आइडेंटिफाई करोगे, मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन. ओके, सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन एन
इंटू ब्रैकेट आर वी माइनस एस पी अपॉन 1/2 आर वी प्लस एस पी। ओके, सो ये कौन से टाइप का बॉन्ड है? रिडीमेबल, जहां पे मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन, तो वो टाइम पे कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट ब्रैकेट ओवर प्लस 1/n इंटू ब्रैकेट आर वी माइनस एस पी whole divided by 1/2 RV plus SP. Okay, now interest is what? Interest rate which is calculated on face value. Tax rate is given, so whatever tax rate is given, so T is what? Tax rate. N is what? Number of years, 5 years, 10 years, 11 years, whatever is given in sum. So N is what? Number of years. RV is what? Redeemable value. And what is redeemable value? It is a value which bondholder get at a time of maturity. Okay, and SP again same calculate करना है. Net sale proceeds कैसे calculate करना है? Face value का amount प्लस प्रीमियम से होगा तो क्या करना है? प्लस करना है, और डिस्काउंट से होगा तो माइनस करना है, और लास्टली क्या माइनस होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर? सो ये फॉर्मूला था फॉर द रिडीमेबल डेब्ट। ओके, सो कल और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके सम्स कैलकुलेट करेंगे। सो बिफोर दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज इरिडीमेबल बॉन्ड एंड द रिडीमेबल। और इरिडीमेबल रिडीमेबल कैसे आइडेंटिफाई होगा मैंने आपको समझाया, अच्छे से ये वीडियो को समझ लेना। ओके, और नोट्स में उसको डिक्टेट भी कर लेना, बिकॉज अभी हम लोग को सम्स करना है। मैं कभी भी आपको क्वेश्चन कर सकता हूं कि मुझे नोट्स दिखाओ ऐसा करके। क्लियर? सो ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए। बाय। ओके, बाय, टेक केयर।